Scientific research helps researchers to state their findings with accuracy and confidence. This helps various other organizations to apply those solutions when they encounter similar problems. ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च के तहत आप जो है अपनी रिजल्ट्स को शेयर कर सकते हैं विद अदर पीपल इन द कम्युनिटी एंड दिस कैन एक्चुअली हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स. साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑब्जेक्टिव होती है, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एज अपोज टू बीइंग सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव जो फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं होती है and helps managers to highlight the most critical factors at the workplace that need scientific attention so as to avoid, minimize, or solve problems. So, scientific investigation and managerial decision making are integral aspects of effective problem solving. यार ये बीबीए वाले क्यों आ रहे हैं क्लास में? भाई आपकी क्लास हो चुकी है, ठीक है. एमबीए स्टूडेंट्स की क्लास है, आप इसमें ना आए. Scientific investigation and managerial decision making are integral aspects of effective problem solving. Scientific research applies to both basic and applied research. एक करना बीबीए स्टूडेंट्स का मैसेज है. So applied research जो होती है, it may or may not be generalizable to other organizations depending on the extent to which differences exist in such factors as size, nature of work, characteristics of the employees and structure of the organization. मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको अप्लाइड रिसर्च क्या होती है, ठीक है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द हॉलमार्क्स और द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है. तो कोई भी साइंटिफिक रिसर्च जो होती है उसमें ये 8 कैरेक्टरिस्टिक्स होना बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है. तो ये 8 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? So it's number one is purposiveness, number two is rigor, three is testability, four is replicability, five is precision, six is objectivity, seven is generalizability, and eight is parsimony. We will explain each of these characteristics in the context of the following example. Consider the case of a manager who is interested in investigating how employees' commitment to the organization can be increased. ठीक है, तो हमारा मेन प्रॉब्लम है कि हम जानना चाहते हैं कि हम एम्प्लॉयज़ की कमिटमेंट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो हमारे पास दैट इज द प्रॉब्लम, हम उसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं. ठीक है, तो किसी भी रिसर्च में पर्पसिवनेस होना बहुत ज़रूरी है. पर्पसिवनेस मींस यू नीड टू हैव अ डेफिनेट एम और पर्पस. ठीक है, सो द मैनेजर हैज स्टार्टेड विद द रिसर्च दैट डेफिनेट. ठीक है, तो आपने एक बार अपनी रिसर्च का पर्पस डिफाइन कर दिया, दैट मींस यू हैव अ डेफिनेट पर्पस. तो यहाँ पे रिसर्च का पर्पस क्या है? Basically, the purpose of the research is on increasing the commitment of employees to the organization.
as this can be beneficial in many ways. ठीक है, एम्प्लॉय कमिटमेंट के डिफरेंट एडवांटेजेस हैं. एन इंक्रीज एम्प्लॉय कमिटमेंट will translate into less turnover, less less absenteeism, increased performance level, all of which would definitely benefit the organization. ठीक है. Then number two is rigor. ठीक है, किसी भी scientific research में rigor होना बहुत ज़रूरी है. Rigor basically refers to a good theoretical base and a sound methodological design. ठीक है, so a good theoretical base and a good methodological design would add rigor to a purposive study. ठीक है, तो बेसिक आइडियाज के किसी भी साइंटिफिक रिसर्च में रिगर्ड तब आती है व्हेन इट इज बेस्ड ऑन किसी थ्योरी के ऊपर बेस्ड होती है और उस इट फॉलोज अ प्रॉपर मेथोडोलॉजी. ठीक है, इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि रिगर मींस केयरफुलनेस, यानी कि अपनी रिसर्च आप कितनी केयरफुल तरीके से करें, या कैन आल्सो से कि रिगर रेफर्स टू द डिग्री ऑफ एग्जैक्टिट्यूड इन रिसर्च इन्वेस्टिगेशन, यानी कि आप जो जिस चीज़ को मेजर करना चाह रहे हैं उसको आप कितनी एग्जैक्टनेस से मेजर कर पा रहे हैं. ये तो रिसर्च में अक्सर हम एस्टिमेट्स लेते हैं, तो आइडिया ये होता है कि एस्टिमेट शुड बी एज एग्जैक्ट एज पॉसिबल, यानी कि दे शुड बी एज क्लोज टू द रियल थिंग एज पॉसिबल. So let us say that manager of an organization asks 10 of its employees to indicate what would increase their level of commitment to the organization. If the manager depends solely on the basis of the responses, reaches to several conclusions on how employee commitment can be increased. The whole approach to the investigation would be unscientific. ठीक है, यानी कि वो सिर्फ 10 लोगों से पूछ रहे हैं, भाई आप बताएं आपका क्या ख्याल है कि व्हाट कैन इंक्रीज एम्प्लॉय कमिटमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो अगर वो अपना फैसला सिर्फ उस इंफॉर्मेशन के ऊपर करता है जो उसे वो 10 लोगों से मिल रही है, तो दिस इज एन अनसाइंटिफिक अप्रोच. ठीक है, इस तरह की जो अप्रोच है इट वुड लैक रिगर फॉर द फॉलोइंग रीजंस. ठीक है, बिकॉज इट विल लीड टू इनकरेक्ट कंक्लूजंस बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्सेज ऑफ जस्ट अ फ्यू एम्प्लॉयज. ठीक है, उससे सिर्फ कुछ एम्प्लॉयज के रिस्पॉन्सेज कंसिडर किए, हालांकि उसकी कंपनी में हो सकता है 2000 एम्प्लॉयज काम करें. So selecting only 10 employees out of 2000, it's a very small number. ठीक है, it's not a representative sample. उसके अलावा the manner of framing and addressing the questions could have introduced bias. ठीक है, तो आप क्वेश्चन में जिस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं, जिस तरह से फ्रेम करते हैं, तो जो आंसर्स हैं वो बायस्ड हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आप क्वेश्चंस किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से फ्रेम. There might be many other important influences on organizational commitment that the small sample did not verbalize during the interviews, and the researcher would have failed to include them. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कोई मेथडोलॉजी उससे नहीं बनाएगी कि भाई उसने एक प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन उसने किस तरह फाइंड करना है. इज नॉट एक्चुअली फॉलोइंग अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू डू दैट. ठीक है, उसने जल्दी वाला काम किया, 5-10 लोगों से पूछा भाई आपको क्या लगता है, चलो ठीक है फिर ऐसा ही होगा. दिस इज नॉट अ साइंटिफिक अप्रोच. ठीक है, सो यू हैव टू फॉलो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, प्रॉपर मेथडोलॉजी बनानी पड़ती है आपको. ठीक है, अगर आप मेथडोलॉजी नहीं बनाएंगे तो आपके रिजल्ट्स में बायस भी होगा और आपके जो रिजल्ट्स हैं दे विल बी इनकरेक्ट. आपकी जो कंक्लूजन होगी दे विल बी इनकरेक्ट. फिर नंबर 3 इज टेस्टेबिलिटी. ठीक है, तो टेस्टेबिलिटी बेसिकली मींस कि आप जो है बेसिकली लेट्स से आपने कोई हाइपोथेसिस बनाया है, that hypothesis should be testable. ठीक है, for example, after taking random selection of employees of the organization and study of previous research done of the area of organization commitment, the researcher developed certain hypotheses on how employee commitment can be enhanced. Then these hypotheses can be tested by applying certain
statistical tests or data collected for the purpose. Then these hypotheses can be tested by applying certain statistical tests to the data collected for the purpose. ठीक है, तो टेस्टेबल सिंपली मीन्स कि आप एक हाइपोथेसिस बनाते हैं अगर अपनी रिसर्च में, तो इट शुड बी टेस्टेबल, ठीक है, यानी कि यू शुड बी एबल टू टेस्ट दैट. Scientific research tends itself to testing logically developed hypotheses to see whether or not data support the hypothesis that are developed. ठीक है, फिर नंबर 4 is replicability. ठीक है, replicability basically refers to the fact कि let's say आप इसी रिसर्च को रिपीट करते हैं in similar circumstances, तो आपके पास सेम रिजल्ट्स आने चाहिए. If you repeat the same time of research in similar circumstances and you get the same results, that means कि आपकी जो रिसर्च है उसकी replicability है. रेप्लिकेबिलिटी का मतलब भी देख लें डिक्शनरी में, इट्स समहाउ क्लोज टू सिमिलैरिटी. ठीक है, सिमिलैरिटी लफ्ज़ के करीब है. रिसर्च में इसका बेसिकली मतलब ये है कि आप अगर अपनी रिसर्च को रिपीट करते हैं, लेट्स से मैंने इस लेट्स से यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में एक रिसर्च की कि यहाँ पे एम्प्लॉय कमिटमेंट कैसी टू देयर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो उसके मेरे पास रिजल्ट्स है. ठीक है, फिर मैंने वही रिसर्च रिपीट किया ना डिफरेंट लेट्स से यूनिवर्सिटी. ठीक है, और उस यूनिवर्सिटी में मेरे पास सिमिलर रिजल्ट्स आते हैं. ठीक, तो अगर ऐसा होता है तो मैं कहता हूँ मेरी रिसर्च की रेप्लिकेबिलिटी है. ठीक है, बेसिक आइडियाज़ कि अगर आप रिसर्च को रिपीट करते हैं इन वन इन ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसको दोबारा रिपीट करते हैं अनदर ऑर्गेनाइजेशन, और आपके रिजल्ट्स अगर सेम आते हैं तो दैट एक्चुअली इंक्रीजेस द कॉन्फिडेंस इन योर रिसर्च. ठीक है, यानी कि इट इंक्रीजेस द कॉन्फिडेंस कि भी आपकी रिसर्च जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है. फिर प्रेसिजन जो है रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ द फाइंडिंग्स टू रियलिटी बेस्ड ऑन अ सैंपल. ठीक है, तो बेसिकली रिसर्च में क्या करते हैं, हम पॉपुलेशन में से एक सैंपल कलेक्ट करते हैं. ठीक है, तो सैंपल में से फिर हम जो है कहते हैं ना पैरामीटर्स एस्टिमेट करते हैं. ठीक है, आपको पता हो पैरामीटर्स क्या होते हैं. ठीक है, सिंपल वर्ड आप कह सकते हैं सैंपल का करेक्टरिस्टिक हम कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम सैंपल की मीन कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, तो बेसिक आइडियाज़ कि हम पॉपुलेशन की मीन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, बट बिकॉज पॉपुलेशन बहुत बड़ी है तो वी कैन नॉट काउंट द एंटायर पॉपुलेशन. तो उसका मीन कैलकुलेट करने का एक तरीका ये कि हम छोटा सैंपल पिक करें, उस सैंपल का मीन कैलकुलेट करें, देन वी यूज दैट मीन टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन मीन. ठीक है, तो आइडियाज़ कि आप जो है पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट कर रहे होते हैं. ठीक है, रिसर्च में अक्सर आप पॉपुलेशन मीन्स को एस्टिमेट करते हैं, एंड आपकी जो एस्टिमेटेड मीन है वो एक्चुअल मीन के जितनी करीब होगी उतनी आपके जो रिजल्ट्स हैं प्रिसाइज होंगे. ठीक है, प्रिसिजन सिंपली मीन्स कि आपके जो एस्टिमेटेड रिजल्ट आ रहे हैं, हाउ क्लोज दे आर टू एक्चुअल रिजल्ट्स. So in business research, we are not able to draw definite conclusions on the basis of the results of data analysis. The reasons are
We have to base our findings on a sample that we draw from the universe. ठीक है, तो हमारी जो एस्टिमेटेड वैल्यूज आएंगी पॉपुलेशन की वो बहुत हद तक सैंपल पर डिपेंड करती है। ठीक है, अगर हम सैंपल अच्छा सेलेक्ट करते हैं तो चांसेस आर कि हमारा जो एस्टिमेटेड वैल्यू इट विल बी वेरी प्रिसाइज। लेकिन अगर हमारे सैंपल में कोई फॉल्ट्स आ जाती हैं, ठीक है, सैंपल सही नहीं होता, तो हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू जो है दे विल नॉट बी प्रिसाइज। ठीक है, फिर देयर आर सर्टेन मेजरमेंट एरर्स आल्सो एसोसिएटेड विद एस्टिमेटिंग। ठीक है, तो इन मेजरमेंट एरर्स की वजह से भी हमारी जो है ना प्रेसिजन कम होती है। ठीक है, तो एक चीज होगी प्रिसिजन, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉन्फिडेंस। ठीक है, कॉन्फिडेंस रेफर्स टू द प्रोबेबिलिटी दैट आवर एस्टिमेशंस आर करेक्ट। ठीक है, तो मैं अगर कहता हूँ कि भाई बेस्ड ऑन आवर सैंपल मीन, पॉपुलेशन मीन का जो एस्टिमेट हमारे पास आया दैट इज 1000। ठीक है, नाउ द थिंग इज हाउ कॉन्फिडेंट आर यू कि जो 1000 पॉपुलेशन मीन आया है इट इज एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग द एक्चुअल पॉपुलेशन मीन। यानी हाउ कॉन्फिडेंट यू आर कि आपका जो एस्टिमेट है it is representing the actual value. So that is confidence actually. Confidence को probabilities की terms में calculate करते हैं। ठीक है, let's say मैं कहता हूँ कि I am 90% confidence कि जो हमारी estimated mean है uh, it is it reflects the population mean। ठीक है, तो आमतौर में इस तरह बात नहीं करते, रिसर्च में भी यूज कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। ठीक है, उसकी हम बाद में भी बात करेंगे। अगर हम कहते हैं ना कि हमारा हमारा जो है लेट्स से मीन लाइज इन 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, so that basically means कि we can confidently claim that 95% of the time our results would be true and there is only a 5% chance of being wrong। ठीक है, सो आइडिया समझाते हैं कि हमारी जो रिसर्च है उसकी प्रिसीजन और कॉन्फिडेंस मैक्सिमम। फिर ये कि the conclusions drawn through the interpretation of results of data analysis should be objective। ठीक है, हमारी जो conclusions हैं, हमारी रिसर्च की conclusions they should be based on objective facts। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। इस तरह नहीं होनी चाहिए कि they should be based on कि भी हमें ऐसा लगता है कि हमारी इंट्यूशन ये कहती है या मुझे ऐसा महसूस होता है, इन चीज़ों में बेस्ड नहीं होनी चाहिए। they should be based on actual observation या actual data। तो अगर आप कहते हैं ना कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज जो है दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर वर्क, तो आप किस बेसिस पे ये कह रहे हैं? आपने कोई ऐसी चीज ऑब्जर्व की, अगर ऑब्जर्व की है तो क्या चीज ऑब्जर्व की है उसको आपने बताना होगा। कितने लोगों ने वो चीज ऑब्जर्व की है, क्या आपने लोगों से पूछा है कि वेदर दे आर सेटिस्फाइड और अनसेटिस्फाइड, या आपने सिर्फ देख के ज्यूम कर लिया। ठीक है, बेसिक आइडियाज दे शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स। The conclusion should be based on the facts or the findings derived from actual data and not on our own subjective or emotional values। तो अगर मैं कहता हूँ कि भी आपकी क्लास में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं फेल हो गए हैं, ठीक है ना, तो आई शुड हैव सम डेटा टू बैक दैट। ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता मुझे लगता है कि भाई सारे स्टूडेंट्स फेल होने वाले हैं, मुझे लगता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स फेल होने वाले हैं। ठीक है? अगर मैं इस तरह की बात करूँ दैट मीन्स कि मेरी बात में ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो मेरी बात में ऑब्जेक्टिविटी होना या मेरी बात ऑब्जेक्टिव होने के लिए ज़रूरी है कि आई सपोर्ट माई रिजल्ट विद सम डेटा। ठीक है, उसका आसान तरीका ये है कि मैं जो मार्क्स आप लोगों के आते हैं उसको शेयर करूँ और उसके बेसिस पे कहूँ कि भाई ये देखें ये नंबर है और इसमें इतने बच्चे फेल हैं इतने पास हैं। अगर मैं नंबर देखे बगैर अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि भाई ज़्यादातर फेल हो गए होंगे, ठीक है, तो दैट इज़ नॉट ऑब्जेक्टिव। आपकी रिजल्ट इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव यानी ऑन एक्चुअल डेटा। ठीक है, सो वी हैव लेस देन 9 मिनट्स लेफ्ट इन दिस सेशन, उसके बाद नया सेशन शुरू करेंगे। फिर नेक्स्ट है जनरलाइजेबिलिटी। Generalizability refers to the scope of applicability of the research findings in one organizational setting to other setting।
वैसे जनरलाइजेबिलिटी यही कहती है कि अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन पर रिसर्च करता हूँ और मेरे रिजल्ट्स ये कहते हैं कि मोस्ट स्टूडेंट्स आर नॉट वेरी हार्ड वर्किंग, यानी यूनिवर्सिटी एजुकेशन के ज़्यादातर स्टूडेंट्स आर नॉट वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है। सो आइडिया इज कि कैन आई अप्लाई दिस टू अदर यूनिवर्सिटीज एज वेल, ठीक है। तो मैं अगर कहता हूँ यूनिवर्सिटी एजुकेशन स्टूडेंट्स हार्ड वर्किंग नहीं है, तो क्या मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि द स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर दे आर नॉट हार्ड वर्किंग एज वेल, स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ जो है पंजाब दे आर नॉट हार्ड वर्किंग एज वेल, ठीक है। सो बेसिक आइडियाज जनरलाइजेबिलिटी कहती है कि अगर आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च किए कि आप उन रिजल्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन। इफ यू कैन डू दैट, दैट मींस क्या कि आपके रिसर्च की जनरलाइजेबिलिटी इज हाई, ठीक है। हमारी कोशिश यही होती है कि हम रिजल्ट्स की जनरलाइजेबिलिटी को इंक्रीज करें, ठीक है। उसका फायदा ये होता है कि वी कैन अप्लाई सोल्यूशन used in one organization, या in one research to another organization, ठीक है। So, ये इसका बहुत बड़ा फायदा है। पार्समनी सिंपली मीन्स के आपकी जो रिसर्च है इट शुड बी सिंपल, यू नीड टू कीप योर रिसर्च एज सिंपल एज पॉसिबल। सिंपल कैसे होगी? एक तरीका तो ये है कि आप बहुत ज्यादा वेरिएबल्स को ना इस्तेमाल करें अपनी रिसर्च, ठीक है। वेरिएबल्स को कम रखें, ठीक है। लेसर नंबर ऑफ वेरिएबल्स को यूज करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, ठीक है। Parsimony can also be introduced with a good understanding of the problem and the factors that influence it. So now we'll talk about deductive and inductive reasoning, ठीक है। तो रिसर्च में अक्सर हम जो है डिडक्टिव रीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? बेसिकली हमारे पास एक थ्योरी होती है, टू टेस्ट द थ्योरी वी गैदर सम डेटा, ठीक है। फिर उस डेटा को हम यूज करते हैं टू टेस्ट हाइपोथेसिस, ठीक है। यानी कि थ्योरी के बेसिस पे हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए वी कलेक्ट सम डेटा, ठीक है। सो डिडक्टिव रीजनिंग में इन रिसर्च वी नॉर्मली इन्वॉल्व्स हाइपोथेसिस टेस्टिंग। फिर एक और अप्रोच हम यूज कर सकते हैं रिसर्च, जिसको हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। So a process where we observe specific phenomena and on this basis arrive at general conclusions. तो रिसर्च के वाले से अगर आप देखें तो यू विल यूज डेटा टू जनरेट अ थ्योरी या टू अराइव एट अ कंक्लूजन, ठीक है। सो बेसिकली डिडक्टिव रीजनिंग हम जब भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ नॉर्मली आपकी जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है इट इज बेस्ड ऑन सम स्ट्रॉन्ग प्रेमिसेस, ठीक है। और प्रेमिस के बेसिस पे आप एक लॉजिकल कंक्लूजन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये कहता हूँ कि ऑल बॉयज आर हार्ड वर्किंग, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ ऑल बॉयज आर हार्ड वर्किंग एंड फिर मैं कहता हूँ कि ऑल स्टूडेंट्स इन दिस एमबीए क्लास आर बॉयज, ठीक है। तो आई कैन रीच अ कंक्लूजन कि भाई ऑल स्टूडेंट्स इन दिस क्लास आर हार्ड वर्किंग, ठीक है। सो बेस्ड ऑन मैंने जो प्रेमिस बनाया यार, बेस्ड ऑन द देयर टू स्टेटमेंट्स, ठीक है, कि ऑल बॉयज आर हार्ड वर्किंग एंड ऑल बॉयज इन और एंड ऑल स्टूडेंट्स इन दिस क्लास आर बॉयज, ठीक है। सो अज्यूमिंग कि ये बिल्कुल सच बात है, ठीक है। प्रेमिसेस जो आमतौर पे देयर ट्रुथ्स यूनिवर्सल कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ्स होते हैं, ठीक है। यानी कि वो सही बात होती है। तो अगर वो आपके पास सही बात आ जाए तो उसके बेसिस यू कैन ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन। तो डिडक्टिव रीजनिंग में यू ऑलवेज ड्रॉ कंक्लूजन बेस्ड ऑन योर प्रेमिस या बेस्ड ऑन योर स्टेटमेंट्स, ठीक है। यानी ये दो तीन स्टेटमेंट आपने बनाई होती हैं, आमतौर पर बिल्कुल ठीक होती हैं, अगर बिल्कुल ठीक भी ना भी हो तो यू कैन जस्ट
ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन फ्रॉम दैट, ठीक है। इंडक्टिव रीजनिंग में ये होता है कि एक लॉजिकल कंक्लूजन फॉलो नहीं करती बेसिकली। होता है कि आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, ठीक है, सो बेस्ड ऑन दोज ऑब्जर्वेशंस यू ड्रॉ अ जनरल कंक्लूजन, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग में आप बहुत स्पेसिफिक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं व्हिच फ्लोज लॉजिकली फ्रॉम योर प्रेमिसेस। इंडक्टिव रीजनिंग में जो है बेसिकली वी डू नॉट ड्रॉ वेरी स्पेसिफिक कंक्लूजन, ठीक है। बल्कि ये होता है कि इंडक्टिव रीजनिंग में हमारे स्पेसिफिक कंक्लूजन नहीं होती, बट वी हैव स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन या स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होती है हमारे पास, ठीक है। बेस्ड ऑन दोज स्टेटमेंट्स वी ड्रॉ अ जनरल कंक्लूजन, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास कम टू क्लास लेट, ठीक है। फिर मेरी ऑब्जर्वेशन ये भी कहती है कि ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास दे दे गेट लो मार्क्स, ठीक है। So you come to class late, you get low marks. So based on that, I can draw a general conclusion that you people are not interested in studying. ठीक है। So I can draw a general conclusion कि you are not interested in studying. ठीक है। अब ये एक जनरल सी बात है, ज़रूरी नहीं है ठीक हो, ठीक है, लेकिन बेस्ड ऑन माई ऑब्जर्वेशन में एटलीस्ट 50% कॉन्फिडेंस से ये बात कह सकता हूँ, ठीक है, लेकिन 100% कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता बिकॉज इट डज नॉट लॉजिकली फ्लो फ्रॉम। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता, ठीक है। सो इंडक्टिव रीजनिंग में जो आपकी कंक्लूजन होती है दे आर नॉट वेरी लॉजिकल, डिडक्टिव में दे आर वेरी लॉजिकल, ठीक है। और रिसर्च में अक्सर हम जब डिडक्टिव रीजनिंग इस्तेमाल करते हैं वी यूज हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है। इंडक्टिव रीजनिंग का जब हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें हाइपोथेसिस नहीं यूज होता, हम तो दूसरी अप्रोचेस यूज होती है, ठीक है। एग्जांपल दी हुई आपको, sales manager might observe that customers are perhaps not as pleased as they used to be. The manager may not be certain that this is really the case, but may experience anxiety and some uneasiness that customer satisfaction is on the decline. So this process of observation and sensing of the phenomenon around is what gets most of the research. ठीक है, तो रिसर्च हम इस तरह की ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, हम इस तरह की ऑब्जर्वेशन जब करते हैं तो हमें एक प्रॉब्लम मिलती है एंड रिसर्च इज मोस्टली बेस्ड ऑन सच प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो रिसर्च, कोई भी रिसर्च शुरू करने से पहले फर्स्ट थिंग वी डू इज वी डू प्रॉब्लम डेफिनेशन। सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं एंड फॉर प्रॉब्लम डेफिनेशन वी नीड टू गैदर सम प्रिलिमिनरी डेटा, यानी हमें कुछ डेटा इकट्ठा करना पड़ता है, उसको स्टडी करना पड़ता है, बेस्ड ऑन दैट वी फॉर्म अ प्रॉब्लम, ठीक है। अभी तक तो मैनेजर ने से ऑब्जर्व किया है, ठीक है, उसने ऑब्जर्व क्या किया है कि customers are not pleased as they used to be, but he is experiencing some uneasiness that उसको ऐसा लग रहा है कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज ऑन द डिक्लाइन, लेकिन अभी उसको ऐसा लग रहा है, उसके पास कोई सबूत नहीं है उस चीज़ का। तो सबूत इकट्ठा करने का एक तरीका ये है कि मैनेजर कैन टॉक टू अ फ्यू कस्टमर्स टू फाइंड आउट हाउ दे फील अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर सर्विस। The manager might find the customer like the products but are upset because many of the times product is out of stock and they perceive the salesman as not being helpful, ठीक है। अब उससे कुछ लोगों से बात की तो उसके पास कुछ सबूत आया कि कस्टमर्स, काफ़ी कस्टमर्स जिनसे मैंने बात की है उन्होंने कहा कि दे आर अपसेट बिकॉज काफ़ी टाइम जो है जो प्रोडक्ट उन्हें चाहिए होता है वो स्टॉक में नहीं होता, एंड उनको लगता है कि सेल्स पर्सन आर नॉट वेरी हेल्पफुल, ठीक है। यानी कि हमने कुछ प्रिलिमिनरी रिसर्च करके एक प्रॉब्लम को डिफाइन कर दिया। फ्रॉम डिस्कशन विद सम ऑफ द सेल्स, ठीक है, फिर उसने सेल्स